Hello guys, so today we are going to start a new series of previous year question paper discussion. So in this series I will try to discuss previous year question paper of each state. So first we will discuss this series from the state Haryana. So here is our first question paper of December 2020, and in this we will only discuss the SS part. So let's start this. The last year question were jumbled, so we'll have to find out which question is SST. But don't worry, we will do that easily. So here is a question number 2. Which one is incorrect statement? You'll have to find out incorrect statement. So the statement first says the activity in the primary, secondary and tertiary sector are interdependent. So this is absolutely correct क्योंकि primary, secondary और tertiary की जो activity हैं they are interdependent. Without these interdependence, the work would have not been done. Worker in the tertiary sector do not produce goods. Definitely this is also true because workers in the tertiary sector produce services. तो वो services produce करते हैं. Irrigating his field by a farmer is an economic activity. Definitely it is an economic activity as well. So the correct answer would be none of these. So right answer is fourth. Next question. Where was the Indian National Congress was founded in 1885? So Indian National Congress was founded in 1885 in Bombay. So Bombay is the correct answer. And you also tell me who was the Governor General at the time of formation of Congress. So it is Dufferin. So make sure you remember this. This can also be asked in the paper. Next question. The first train with solar power coaches was launched in which of the following station? So this was certainly an unexpected questions, but we'll have to do this. So the right answer of this question is Safdarjung railway station. So first DMU trains that was started from Safdarjung railway station, New Delhi. So make sure you remember this, but this will not be repeated. Next question. In 1928, whose image was used to popularize baby products in India? So this is a very direct question from the print culture, or you can not print culture, but age of industrialization. So that is a direct question. So the Lord Krishna image were used as a baby on the baby product. Next question. Where was the cattle plague spread in 1890? The cattle plague was spread in Africa. Everybody knows that it was a rinderpest disease that was spread by Britishers. From AD 7682 to 770, who introduced hand printing technology in Japan? So everyone know that the hand printing technology introduced in China first, but it was introduced in Japan by Buddhist missionaries. Again, easy questions. नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जिस स्टेटमेंट में आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है उसमें आप ऐसे टिक कर लो और ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और इस इनकरेक्ट को थोड़ा ज़्यादा ऐसे कर लो ताकि आपको याद रहे कि इनकरेक्ट छाटनी है. ए कंट्री विच इज नॉट रिपब्लिक इज ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक. सो दिस इज द फर्स्ट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट डेफिनेटली, बिकॉज जो कंट्री रिपब्लिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं वो डेमोक्रेटिक भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन क्या ब्रिटेन डेमोक्रेटिक नहीं है? डेफिनेटली ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है. तो यहाँ पे पहले ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है. बाकी स्टेटमेंट को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. स्टेट विच हैज़ इलेक्टेड हेड को रिपब्लिक बोलते हैं. ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग या क्वीन है. डेफिनेटली क्वीन एलिजाबेथ है. यूएसए में भी इलेक्टेड हेड होता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट आंसर. So let's move to the next question. Which state has the highest national park in India out of the following? See, highest national park in India out of these following, the right answer is MP.
एमपी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं एज कम्पेयर टू अदर। ओके, okay, question number 14. So which state has the highest national park? So Madhya Pradesh is the right answer. Next question, who said the state is association of association? See, this is a very direct statement, and definitely this is from 11th and 12th NCRT, and you cannot guess this kind of questions. You'll have to make a clear guess here. तो इसमें आपको गैस ऐसे ही करना है। देखो, आप महात्मा गांधी को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अगर ऐसा कुछ पढ़ाया जाता तो आपको बताया भी जाता। तो देयर इज़ नो सच थिंग महात्मा गांधी सेड। एंड महात्मा गांधी ने ऐसे कोई कमेंट भी नहीं किया खासकर, बिकॉज हिज मेन कंसंट्रेशन वाज ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, एंड सो डेफिनेटली कोई बड़ा आदमी ही होगा। सो इट वाज एरिस्टोटल, सो एरिस्टोटल इज द राइट आंसर। Growing two or more crops in indefinite growing pattern is known as mixed cropping. A direct question. This can be considered from bio as well. Which of the following hill station is one of the eco hotspot in India? So eco hotspot in India is वेस्टर्न घाट में है मोस्टली, तो आप इनको काट सकते हो बहुत ही इजीली, बिकॉज दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव एंड वेस्टर्न घाट इज हाईली, वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो दैट इज eco hotspot. So Amboli, Maharashtra is the right answer. Next question, who personified the Statue of Liberty as a female figure? देखो, अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन अगर याद ना भी हो तो लिबर्टी आपको अगर याद हो तो आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, एंड इट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रांस ओनली, जहाँ पे इन सब चीज़ों की बात की गई। तो इट वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट हु personified liberty as a female figure. Which of the following is correctly matched? कौन सा इसमें से सही मैच है? तो मैथुर डैम कावेरी पे है, रॉन्ग आंसर। कोयना डैम कोयना पे ही है, ये भी गलत है। परवरा डैम गोदावरी पे है, करेक्ट है। परवरा रिवर है जो कि सही है। नरोरा डैम गंगा पे ही है, तो ये भी सही है। तो देयर इज टू आंसर, मल्टीपल आंसर इज 3 and 4 इज द करेक्ट। इवन एनसीईआरटी ने 3 and 4 ही आंसर दिया है। सो बोथ आर करेक्ट, यू कैन mark anyone. Next question. Question number 31. So comparing the different countries, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका अगर आपको याद ना रहे तो सिंपल याद रखो लाई। लाई यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम एंड एजुकेशन। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, यू हेल्थ स्टेटस से ही पता चलेगा। इनकम से पर कैपिटा इनकम है, और एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और हर बार आ सकता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32. So question number 32, match the following column with the A and B. So let's match these. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बाकी के मिला के देखो। सनराइज इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये तो पता है जूट तो नेचुरल फाइबर है, तो सी का सेकंड आएगा। सिलिकॉन वैली पता है आपको, बेंगलोर है, तो ये भी पता होगा। तो सी का सेकंड, तो सी का सेकंड अगर आप देखते हो तो सी का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और कहीं भी नहीं है, तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट अदर ऑप्शंस। सो डी इज करेक्ट, यानी आंसर 4 इज करेक्ट। Where was the first printing press developed in 1430? This is a very easy question. आपको ये पता है कि गोटेनबर्ग ने डिस्कवर किया था प्रिंटिंग प्रेस को, एंड द स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रिंटिंग प्रेस वाज फ्रॉम जर्मनी। गोटेनबर्ग भी वहीं का था, तो जर्मनी में ही सारी चीज़ें हुई हैं स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, on which date Bengal partition was announced by British government in 1905? This is again a very unexpected question, but somehow you can do it. So there is no such method by which you can remember the dates, but
The correct answer is 16th of October. So make sure you remember these type of dates. And also tell me the date of Quit India movement in the comment section if you're watching this, because this can also be asked. Okay, the question says, is in an imaginary country the monetary value of contribution of private sector, public sector, primary, secondary and tertiary the given जीडीपी पूछ रहा है, तो जीडीपी अगर मैं बताऊं तो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की वैल्यू को ऐड कर लो, वेरी सिंपल. तो प्राइमरी की कितनी है देखो, प्राइमरी प्राइवेट सेक्टर की 500 है, पब्लिक सेक्टर की इतनी है, तो प्राइमरी की ये है आपकी 10,000, सेकेंडरी की 5,000 एंड टर्सरी की 7,000. तो टोटल कितना हो गया, 5 10 12 10 इतना 22,500 इज द राइट आंसर. 7 5 12 और 10, सॉरी, ओके, 7 5 हो गया 12,000 और आपका ये 10,000. तो इट इज टोटल 22,000. तो 22,000 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the author of Hind Swaraj, famous Hind Swaraj? So very easy question, it is Mahatma Gandhi is the correct answer. क्वेश्चंस जंबल्ड है थोड़े, तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर 48, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी एशियन कंट्री से पास होती है? देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो तो. देखो इंडिया से जाती है, ठीक है, सऊदी अरेबिया से जाती है, ये हमें पता नहीं, चलो कोई बात नहीं. लेकिन श्रीलंका से जाती है क्या? नहीं जाती, तो पहला ऑप्शन कट गया. सेकंड, इंडिया से जाती है, जाती है, बांग्लादेश से जाती है, जाती है, अब इंडिया से जाती है फिर इंडोनेशिया से जाएगी नहीं, ये फिर से इशू. तो इंडिया से इंडोनेशिया से भी नहीं जाती, तो ये भी कट गया. अब सऊदी अरेबिया से तो पहले भी देख लिया हमें, यहाँ पे जाती है. यूएई से पता नहीं, ओमान से ये भी पता नहीं, तो तीसरे ऑप्शन के बारे में हमें अभी कोई नॉलेज नहीं है, जाती है नहीं जाती है. लेकिन हमें ये पता है इंडोनेशिया से नहीं जाती, तो इसको भी काट दो. द राइट आंसर इज थर्ड. वेरी, इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन रूल यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्याम हैज टेकन ए डोमेस्टिक गैस कनेक्शन फ्रॉम आईओसी. श्याम ने डोमेस्टिक गैस कनेक्शन लिया है. लोकल एजेंसी मैनेजर कहता है कि अगर आप गैस स्टोव के साथ, अगर आप हिम टू परचेज ए गैस स्टोव 4,000 फ्रॉम देम. लोकल गैस एजेंसी है, मैनेजर कह रहा है कि आपको 4,000 का गैस भी स्टोव भी खरीदना पड़ेगा. तो यहाँ पे उसका कौन सा राइट है जो वायलेट हो रहा है? तो डेफिनेटली अगर आप कह रहे हो गैस कनेक्शन के साथ आपको गैस भी लेना पड़ेगा, तो उसका राइट टू चूज ऑप्शन वायलेट हो रहा है. सो सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पांडु पोर्ट कहाँ पे है? तो ये आपको नहीं भी पता पांडु पोर्ट कहाँ है, तो थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. पांडु पोर्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको रिवरराइन आइलैंड जरूर पता है, मांजुली आइलैंड. और मांजुली आइलैंड कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र पे है. तो वाइज ऑप्शन इज थर्ड, बिकॉज रिवरराइन आइलैंड और कहाँ भी कहीं भी नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि रिवरराइन पोर्ट पे ही रिवरराइन आइलैंड हो. तो राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र. सो 54 इज थर्ड. In which of the following areas Lok Sabha and Rajya Sabha have equal power? So Lok Sabha and Rajya Sabha have equal power in the ordinary bill as well as constitutional amendment bill, right? So option third is correct. Next question, which is the other name of सह्याद्री? सह्याद्री का दूसरा नाम वेस्टर्न घाट है, ये आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, सह्याद्री वेस्टर्न घाट, राइट. Again, very easy question. Who founded Swaraj Party within the Congress? So it was C.R. Das and Motilal Nehru. Again, easy question. So C.R. Das and Motilal Nehru is the right answer. क्वेश्चन नंबर 66, आयरन ओर और कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. सो कर्नाटक कुद्रेमुख, यानी ए का है सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड कहाँ है? ए का सेकंड सिर्फ एक में ही है, बाकी का नहीं पता तो आप एक बार देख लो. जैसे उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में ही है, पता है आपको, तो बी का 4 हो गया. झारखंड आपको पता है, सिंगबाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ए.
छत्तीसगढ़, बालादिला। सो वेरी इजी ऑप्शंस, आपको एक अगर आपको मैच कर देते हो तो बाकी इजीली मिल जाते हैं। सो 66 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बाकियों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, इफ देर आर टू इकोनॉमीज हैविंग सेम पर कैपिटा इनकम ऑफ $50,000, सो व्हाट वी कैन से दैट, अगर दो कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी अगर 50,000 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है? नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन फर्स्ट इज आउटराइटली रॉन्ग। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी एक गलत दो गलत। One might have equitable distribution of income while other might have great disparity between rich and poor. Definitely true। जैसे हमारे देश का ही केस ले लो, अगर हमारे देश के केस में अगर डिस्कस करें तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे देश के जो लोग हैं वो अमीर हैं, क्योंकि हमारे देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी इनकम भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपको ना भी पता हो तो नन ऑफ दीज इज लेस लाइकली टू बी करेक्ट, ज़्यादातर सही नहीं होता है, तो इस केस में आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1772 who remarked that demand of Indian textile could never reduce in, तो ये किसने रिमार्क किया? So it was Henry Putulo। A direct questions, you need to remember these type of questions, very easy questions। choose the group of two state having coalition government, कौन से स्टेट में कोalition गवर्नमेंट है ये आपको छाटना है। तो आप इसको आसानी से छाट सकते हो क्योंकि आपको पता है हरियाणा में तो वैसे ही कोalition गवर्नमेंट है, बीजेपी और जेजेपी। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, डेफिनेटली बी तो सही है। तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है वो काट दो। तो आप पहले को एलिमिनेट कर सकते हो, इसको करेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास है बी और डी और बी और सी। तो बी और डी, आपको ये पता महाराष्ट्र में शिवसेना और इन सबका गठबंधन है, तो बी और सी इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत न्यूज़ व्यूज़ देखते रहा करो, न्यूज़पेपर वगैरह। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 74, विच इज नॉट द एम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एम नहीं है? सो मोर प्रोडक्शन एट ऑल द लेवल, डेफिनेटली ये तो एम है ही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ट्रेड को कनेक्ट करना थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। इंक्रीज इन द ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली ये भी होता है। तो डेफिनेटली राइट आंसर बच ही गया डी, कि सब्सिडी देना है गरीबों को, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करता है ग्लोबलाइजेशन, बल्कि इसका अपोजिट है। आपको पता है यूएसए और इंडिया का सोलर सेल पे लेके इशू चलता रहता है हमेशा। यूएसए अपोज करता है कि इंडिया इज गिविंग सो मच सब्सिडी टू इट्स फार्मर। इनफैक्ट यूएसए अपने फार्मर को ज़्यादा सब्सिडी देता है। The deepest landlocked port, again very easy question and fact based question. So deepest landlocked port is Visakhapatnam is the right answer. Question number 76, which two of the following statement are true? कौन से statement सही है? So India is a unitary state, is it true? No, India is not a unitary state, India is a federal state, you know. So India is a federal state, second is correct. India is union of state, definitely this is also correct, India is a union of state. इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, यूनिटरी फेडरल। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दो और तीन इज द राइट आंसर, बट दो और तीन नहीं है, तो यहाँ पे हमें फिर से सोचना पड़ेगा। फर्स्ट तो गलत है क्योंकि इंडिया यूनिटरी स्टेट नहीं है, तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट दिस। एक जहाँ पे एक है वो कर दो। अब आपके पास ऑप्शन बचे 3 और 4। देखो यहाँ पे इंडिया फेडरल स्टेट है या नहीं है, कई बार इंडिया को क्वासी फेडरल बोला जाता है, क्वासी फेडरल। And because India have a federal structure as well as unitary structure, so that's why some political scientist does not consider Indian state as a federal, they consider it a quasi federal. That's why the second statement stands wrong here. So only third and fourth is correct, right? So B is correct answer. Next, which of the following reflect situation where a person is employed but do not contribute adding to the total production? So it is a disguised, very easy, direct statement based question. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे जरूर से ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, जहाँ पे जरूर तो सिर्फ
चार लोग 8 लोगों की जुड़े हुए हैं, 12 लोग, तो ये 4 लोग हैं, ये एक्स्ट्रा है, बिकॉज ये डज नॉट गिव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द जीडीपी एज वेल। अगर उनको हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 हैं, ये हिडन बेरोजगार हैं, छुपे हुए बेरोजगार हैं। The effort made to increase the farm production in order to meet the growing demand of increasing population. So it is agriculture development direct। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोशेंट, डिजर्नेशन इंडेक्स, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। Who decide the nature of bill in the Lok Sabha? So the power lies with the speaker of Lok Sabha। जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि ये बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। और दूसरा एक चीज़, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं और कहीं भी ओरिजिनेट नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा सिर्फ 14 डेज तक होल्ड करके रख सकती है, इससे ज़्यादा राज्यसभा इस बिल को होल्ड करके नहीं रख सकती। सो द इंटायर पावर लाइज विद द लोकसभा ओनली एंड द नेचर इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ दैट लोकसभा। सो सी इज करेक्ट आंसर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सिविल कोड को क्या नाम दिया गया था? तो इट इज ए नेपोलियन सिविल कोड। सो थर्ड इज करेक्ट आंसर। Next question, which agency of UN get the peace prize for 2020? So it was World Food Program। थर्ड इज राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको देखने पड़ेंगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं तो इसमें आपको वही इंटेलिजेंटली गैस करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप? कौन से इंडिया की फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी? देखो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते हो। ज़्यादातर टेक्सटाइल यानी कॉटन जनरली आपको वहाँ पे मिलेगी महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास ही कॉटन मिलेगी आपको, और कहीं भी नहीं मिलेगी, राइट। तो क्योंकि ब्लैक सोइल की प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा है और कॉटन वेट लूज करता है, तो जनरली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती हैं वो रॉ मटेरियल के नज़दीक ही रहती हैं। तो महाराष्ट्र गुजरात में से आपको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों को आप काट सकते हो, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात एंड इन दोनों में अगर आपको चूज करना हो तो वाइज ऑप्शन जो है वो गुजरात है, ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात में ही है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट पहली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वहीं सेटअप की जाए। सो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंटली गुजरात को गैस करना था, तो बी इज करेक्ट। ओके, विच कंट्री हैज़ द ट्रेडिशन विच वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर? एक बार स्पीकर है गया वो सदा स्पीकर रहेगा, तो दिस नोशन लाइज विद द ब्रिटेन। सो यूके इज द करेक्ट आंसर। Again, this is a very questions that Istri Dharma Vichar that was written by Ram Chadda. What was the theme of this book? तो इस बुक में बताया गया है कि हाउ, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें बताया गया है कि हाउ टू टीच अ वुमेन हाउ टू बी ओबीडेंट वाइफ, कि उनको किस तरह से ओबीडेंट वाइफ रहना है। तो 4 है करेक्ट, डायरेक्ट प्रिंट से ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so let's read this statement. Mr. Anil lives in a village and engaged in agriculture occupation. Mr. Anil है वो किसी गांव में रहता है, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में वो इंगेज रहता है एंड उसको कुछ मनी चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए का लोन ले लेता है कोऑपरेटिव बैंक से, एंड जो उसके गांव में ही है, और वो 50,000 रुपये मनी लेंडर से भी लेता है जो उसके गांव में है, 25,000 रुपये वो अपने किसी फ्रेंड से लेता है। तो अगर इस सिचुएशन में देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का रेशियो कितना है? तो देखो 1 लाख रुपए तो उसने बैंक से लिए, तो ये तो हो गया फॉर्मल। और रेशियो की बात करें तो 50 उसने अपने मनी लेंडर से लिए, 25 अपने फ्रेंड से लिए, तो 75,000 रुपये उसको कहाँ से मिले? इनफॉर्मल से। तो ये फॉर्मल से इनको काट लो डेफिनेटली, 3 से 3 जीरो उड़ा दो, 25 चौके 100, 25 या 75, तो 4:3 इज द राइट आंसर। सो 4:3 ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के इकोनॉमिक्स के इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं, आप आराम से उसको कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपका पेपर ओवर होता है। तो देखो, सो ओवरऑल पेपर वाज वेरी इजी, मोर और लेस इजी, हार्डली 4-5 क्वेश्चन वर फ्रॉम करंट अफेयर, और वो करंट अफेयर भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो ओवरऑल इस पेपर में बिल्कुल
इजी पेपर था, आप इस पेपर में आराम से 35 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपको एनसीईआरटी का बेसिक पता है तो। ओके गाइस, सो दिस इज a brief analysis of question paper NTSC 2020, and we will continue this series. And in this series we will cover every state question paper, only SS. Okay, so have a nice day, have a great day, keep learning. Thank you very much.